आज हम अप्लाइड केमिस्ट्री के सिलसिले में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है केमिस्ट्री इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ स्केल एंड इट्स प्रिवेंटेशन. In this lecture, I will cover what is scale, how it is formed, what are its disadvantages, and how we can prevent it. So, let's start. Consider a very simple setup of a boiler. It is a steel tank. The boiler is always a steel tank which is provided with inlet of water and outlet for steam. Now this boiler is half filled with water, right? This boiler is half filled with water. Now in order to convert water into steam, we need a constant supply of the heat. Now as you know, water is a universal salt. It has a large number of salt dissolved in it. It contains phosphate, chlorides, hydroxide, oxide. You can say all salts can be dissolved in water. Now, as time passes, more and more water convert into steam, so it leaves behind the dissolved salt. The dissolved salt form what? A layer. The dissolved salt form a layer on the inside of the wall of the boiler. If this layer is in form of hard sticky layer, then it is called scales. And if the layer of undissolved salts are smooth, so it is called smooth and non-sticky, then it is called sludge. So what is meant by scale? Scale is the non-sticky hard layer formed by undissolved salt on the inside of the boiler, right? Now, what is its disadvantage? This layer of undissolved salt work as an insulator. So, and it lies between water of the boiler and between the heat sources. So, what it's prevent the transfer of heat to the water. As a result, it takes more time and more energy to convert water into steam. So one of the disadvantage of this scale is inefficiency of boiler, right? The second disadvantage is that these scale work as an insulator. So as a result, when we supply heat, so the water is not in direct contact with the wall of the container. So the heat from this wall of container is not transferred to the water very efficiently. As a result, it becomes superheated. So due to which there is always a danger of explosion and bursting of the you can say the boiler fires or the boiler tanks, right? So this is the basic concept. Now how we can prevent it? So we will study in detail now. Okay, so let's go to the main subject. Now, chemistry involved in the formation of scale and its prevention. Let me read it out for you. A large amount of water is used in boiler for steam generation, as you know that. Boiler feed water should be free from dissolved gases like oxygen and CO2. Why? Because these oxygen and CO2 cause the corrosion of the boiler. Third, the boiler water should be as soft as possible. चूंकि बॉयलर में स्केल्स जो बनाते हैं, जो हार्ड लेयर ऑफ डिपॉजिट सॉल्ट बनाते हैं, वो मोस्टली क्या होते हैं? ड्यू टू कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट. तो इसलिए वाटर को बॉयलर में फीड करने से पहले इसको सॉफ्ट करना होगा. इट इज़ नेसेसरी टू ट्रीट बॉयलर वाटर suitably, otherwise it causes formation of boiler scale and sludge. अगर आपने वाटर को पहले ट्रीट नहीं किया बॉयलर में फीड करने से पहले, तो it will cause boiler scale and sludge and it will cause boiler corrosion, right? Now स्केल एंड स्लज फॉर्मेशन कैसे होती है, मैंने तो ऑलरेडी उस डायग्राम से आपको एक्सप्लेन किया, लेकिन यहाँ पे सिस्टमेटिकली पढ़ते हैं.
इन बॉयलर वाटर इज बॉइल्ड टू जनरेट स्टीम। आप सबको पता है द स्टीम इज कंटिन्यूसली विथड्रॉन फ्रॉम द बॉयलर एंड फ्रेश वाटर इज फेड इनटू द बॉयलर। मतलब क्या है, बॉयलर में आप कंटिन्यूसली फ्रेश वाटर ऐड करेंगे और इससे स्टीम कलेक्ट करेंगे। With the increase in concentration of these salts, they are separated and precipitated on the inner side of the pipes या the wall of container पर वो क्या होते हैं, precipitated होते हैं। अब if the salt precipitated from the hard and sticky coating on the boiler surface, it is called boiler scale। मतलब क्या है, अगर ये precipitated salt sticky होगा और hard होगा तो इसको scale कहेंगे। और अगर on the other hand if the deposits are वीकली हेल्ड इट फॉर्म स्लज, अगर ये स्मूथ होंगे और वीकली हेल्ड टू द वॉल ऑफ कंटेनर होंगे तो फिर ये क्या बनाएगा, स्लज कहेंगे, राइट। सो इट इज द बेसिक कंसेप्ट। नाउ मैकेनिज्म ऑफ स्केल्स, यहाँ तो मैकेनिज्म ऑफ बॉयलर फॉर्मेशन है लेकिन असल में यहाँ गलती हो गई। ये क्या है, मैकेनिज्म ऑफ स्केल फॉर्मेशन। एज आई टोल्ड यू, वाटर कंटेन डिजॉल्व्ड कैल्शियम बाइकार्बोनेट एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। और आपको पता है जब कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को आप हीट करते हैं तो क्या होता है, इट बिकम अनडिजॉल्व और जो इनर वॉल ऑफ बॉयलर है उस पर डिपॉजिट हो जाते हैं। हार्ड वाटर इज स्प्रेड इनटू द बॉयलर ऑन बॉइलिंग इट्स एवापोरेट, वाटर एवापोरेट होता है लिविंग बिहाइंड द सस्पेंडेड साल्ट्स। व्हेन द कंसंट्रेशन इंक्रीज अल्टीमेटली they are separated and form a sludge and scale। जब कंसंट्रेशन वाटर चला जाता है, चूंकि स्टीम तो अपने साथ डिजॉल्व साल्ट को नहीं ले जाता, तो जो भी वाटर स्टीम में बनेगा उसमें जो डिजॉल्व साल्ट है they will become undissolved and it will deposit on the inner side of the inner walls of the boiler। The solubility of certain salt decrease with increase in temperature। एक और पॉइंट भी है, जिस तरह मैग्नीशियम सल्फेट है या कैल्शियम सल्फेट है उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा टेम्परेचर से कम होती है, जब उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है तो वो डिपॉजिट होता है। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन स्केल्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। नाउ स्केल्स के कितने टाइप्स हैं, यू कैन सी इसके फॉलोइंग टाइप्स है। अल्कालाइन अर्थ स्केल्स, अल्कालाइन अर्थ स्केल्स कौन सा होगा, चूंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम अल्कालाइन अर्थ मेटल है तो इसके जो भी कार्बोनेट है, सल्फेट है, बाइकार्बोनेट है, अगर ये सॉल्ट स्केल्स बनाए तो इसको हम क्या कहेंगे, अल्कालाइन अर्थ स्केल। जिस तरह कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम फास्फेट, मैग्नीशियम, अगर इसमें कैटायन कैल्शियम या मैग्नीशियम हो तो इसको हम अल्कालाइन अर्थ स्केल्स कहेंगे। सेकंड है आयरन ऑक्साइड स्केल। आयरन ऑक्साइड स्केल कौन से होंगे, अगर उसमें फेरस आयन या फेरिक आयन एज ए कैटायन मौजूद हो, मतलब फेरिक सल्फेट, सोडियम फेरिक, यू कैन से यहाँ पे क्या लिखा है, फास्फेट वगैरह। कॉपर स्केल क्या होगा, अगर उसमें कॉपर आयन एज ए साल्ट, अगर उसमें कॉपर आयन मौजूद हो तो हम उसको कॉपर स्केल कहेंगे। और इसके साथ अगर सिलिकेट स्केल होगा, किसी भी कैटायन या एनायन हो अगर उसमें सिलिकेट हो तो उसको हम क्या कहेंगे, सिलिकेट स्केल। ओके, एज आई टोल्ड यू, डिसएडवांटेज ऑफ स्केल फॉर्मेशन। स्केल फॉर्मेशन के डिसएडवांटेज क्या होंगे, मैंने आपको बताया। स्केल आर स्लज इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब वो इंसुलेटर है, एज आई टोल्ड यू earlier, as a result efficiency of boiler decrease, hence fuel consumption is much more, right? Second, scale does not allow water to come in contact with plates and tubes of boiler। अगर स्केल्स मौजूद हो तो जो बॉयलर के वॉल्स है उसके दरमियान और वाटर के दरमियान डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा, क्योंकि उसके दरमियान स्केल होगा और स्केल एज ए इंसुलेटर है, तो जिसकी वजह से आपको ज़्यादा हीट सप्लाई करना होगा वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए, जिसकी वजह से जो बॉयलर के जो वॉल है वो ज़्यादा एक्स्ट्रा हीटेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक्सप्लोजन का और इंसिडेंट का खतरा होता है। थर्ड, विद द स्केल फॉर्मेशन ट्यूब्स ऑफ बॉयलर में भी करोडेड, क्योंकि स्केल जब बनते हैं तो स्केल्स में साल्ट्स होते हैं और आपको पता है साल्ट्स में डिजॉल्व ऑक्सीजन वगैरह होता है और साल्ट वैसे भी करोजन प्रोसेस को एनहेंस करते हैं। अब
जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हम इस टॉपिक पर एक और भी वीडियो करेंगे, तो इसलिए इसको बहुत शॉर्ट पढ़ते हैं। आपको सबसे पहले इफ़ यू वांट टू प्रिवेंट द स्केल फॉर्मेशन, तो आपको सॉफ्ट वाटर यूज़ करना चाहिए। आपको वाटर को पहले ट्रीट करना चाहिए। डीप सॉफ्टनिंग ऑफ फीड वाटर आप करेंगे। दूसरा आपने क्या करना है, प्रिवेंटिंग कंटेमिनेशन ऑफ फीड वाटर एंड इट्स कंपोनेंट। अभी अगर आपने वाटर सॉफ्ट किया है और आप इसको बॉयलर में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर आपको बॉयलर में भी साफ होना चाहिए, ताकि अगर वो वाटर में सॉल्ट्स वगैरह कॉन्टेक्ट्स ना हो। थर्ड जो है, केमिकल कंट्रोल ऑफ बॉयलर एंड वाटर ट्रीटमेंट्स। मतलब क्या है, आपने न सिर्फ वाटर को सॉफ्ट करना है, बल्कि इसके अलावा ऐसे केमिकल यूज़ करने हैं जो कि साल्ट को पहले अनडिजॉल्व करते हैं बिफोर फीडिंग इनटू बॉयलर। सो इसकी मदद से आप स्केल्स फॉर्मेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके।